Namaste everyone. So students, today we will study about a very different case of permutations. That is, we will study about permutations of objects, not all different. So today we will find arrangements of objects in which it is not necessary all objects will be different. Some objects may be alike, some objects may be identical, some may be different, right? So there is one result. So first of all, let us see what is this result. The number of permutations of n objects, taken all at a time when p objects are alike and of one kind. ठीक है, p objects एक जैसे हैं, identical हैं, of one kind. q objects are alike and of another kind. r objects are alike of yet another kind. Then the remaining objects are different, then the number of permutations is n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial. So students, according to this result, it is given we have total n objects, right? यहाँ पर total n objects हैं and in total n objects में से p objects alike हैं और one kind एक जैसे हैं of one kind, similarly q are alike of one kind, similarly r of alike of yet another kind, okay, and remaining are different. तो इन n objects की जो total permutations हैं वो होंगी n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial, right? तो let us see ये result कैसे आ रहा है. So first of all students, we have total n objects. हमारे पास total n objects हैं, right? हमने n objects को arrange करना है जिसमें से p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, r एक जैसे हैं और remaining different हैं, right? So first of all, we will assume let total number of permutations are x. ठीक है, हमने assume कर लिया कि मान लीजिए total number of जो arrangements हैं हमारी x है. तो let total number of arrangements, ठीक है, जो हमारे required total number of arrangements हैं, ठीक है, उनको हमने x consider कर लिया कि जो हमें find out करनी है let वो total number of arrangements x है, right? Now अब इन टोटल x अरेंजमेंट्स में से मैं कोई एक अरेंजमेंट सबसे पहले यहाँ पर लेके चल रही हूँ. आई एम टेकिंग ओनली वन अरेंजमेंट. एक अरेंजमेंट की पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी. एक अरेंजमेंट में मैं टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर लूँगी, राइट? और उन टोटल नंबर ऑफ वेज को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी x से, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, राइट? तो आई एम फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस p q and r थिंग्स, ओके इन वन अरेंजमेंट. ओके, एक अरेंजमेंट में हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ वेज. तो जो भी नंबर ऑफ वेज आएंगे उनको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे. चलिए नाउ अगर हम बात करें वन अरेंजमेंट की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अरेंजमेंट की बात करते हैं और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में भी हम क्या लेकर चलेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास p थिंग्स हैं, जो p ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अलाइक हैं, जो कि एक जैसे हैं, एंड हम अपनी इस पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट में इनको रिप्लेस कर देते हैं बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ये जो सभी एक जैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, राइट? तो ये जो p ऑब्जेक्ट्स हैं ये अब डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं और बाकी आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बाकी सभी से भी डिफरेंट है. तो दीज p ऑब्जेक्ट्स अपने आप में amongst themselves can be arranged in p factorial ways, right? Similarly q के लिए भी हम यही काम करेंगे. हम सपोज कर लेते हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अपने आप में डिफरेंट होंगे एंड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. सो दीज q ऑब्जेक्ट्स amongst themselves can be arranged in q factorial ways, right? Similarly same हम r ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे तो r objects can be arranged in r factorial ways. So therefore in one arrangement these p different objects, these q different objects, these r different objects can be arranged in p factorial into q factorial into r factorial ways. तो आपके पास ये टोटल वेज आ गए इन वन अरेंजमेंट. इन वन अरेंजमेंट अगर हम इन थिंग्स को रिप्लेस कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स से अगर हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं तो इन वन अरेंजमेंट इनको अरेंज करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो हमारे पास आ गए p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. बट वी आर एज्यूमिंग देयर आर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर x. तो corresponding to one arrangement these are total number of ways. तो corresponding to x arrangements total number of ways will be x into p factorial into q factorial into r factorial, right? So therefore total number of ways
फाइनली हमारे पास आ जाएंगे x इंटू पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। नाउ हाँ बस टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n, राइट। और यहाँ पे हम एज्यूम करके चल चुके हैं कि ये जो p q r ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमने डिफरेंट कंसीडर कर लिया। इट मीन्स ऑल दीज n ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड वी नो इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज ऑल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन n फैक्टोरियल वेज। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज of arranging n different objects is equal to n factorial. So therefore according to question हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ये आए हैं, और अगर हम वेज से बात करें, अगर हम बात करें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने की, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे आपके पास n फैक्टोरियल। तो therefore दिस x इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर फैक्टोरियल आपके पास इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल के, एंड therefore from here n factorial is equal to x into p factorial into q factorial into r factorial is equal to n factorial, and finally x is equal to n factorial upon p factorial q factorial r factorial। और यहाँ पे हमने x इसको एज्यूम किया था टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस को, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial, right students? So it is very important result, that is the number of permutations of n objects taken all at a time when p objects are alike and of one kind, q objects are alike and of another kind, r objects are alike of yet another kind, and the remaining objects are different is n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial, right students? Now we will do questions based on this result. Okay, so our first question is, yes, let us see what is our first question. There are three identical blue balls. There are three identical blue balls. There are four identical red balls and five identical green balls. In how many ways can they be arranged in a row? तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने रिजल्ट यहाँ पे स्टडी किया उसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन आपके पास। इन दिस देयर आर थ्री थिंग्स विच आर अलाइक, फोर थिंग्स दीज आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, एंड दीज आर फाइव आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ अनदर काइंड, एंड वी हैव टू अरेंज दीज टोटल 12 थिंग्स इन ए रो। तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो रिजल्ट अभी हमने स्टडी किया, डेट इज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हेयर टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो जाएंगी 4 + 3 7 + 5 12 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, देन 4 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल। इसको आगे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। इट विल बी 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बनेगा ये। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 एंड 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है दैट विल कम 27720, दैट इज 27,720। तो टोटल नंबर बेस हमारे पास आ जाएंगे 27,720, राइट स्टूडेंट्स? तो इट्स वेरी सिंपल, आपने रिजल्ट यूज़ किया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स? तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो नंबर्स फॉर्म करने हैं वो 6 डिजिटेड होने चाहिए। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 1 1 2 2 3? तो यू कैन सी हियर डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो 1 है, 1 आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है। इट मीन्स हेयर जो एक डिजिट है आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली जो 2 है वो भी आपके पास 2 टाइम्स है, एंड देन 3। तो टोटल 6 डिजिट्स हैं, जिसमें से 3 डिजिट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 डिजिट्स आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, एंड 6th डिजिट इज डिफरेंट। सो इसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इज इन 6 डिजिट्स की हेल्प से आप 6 डिजिट नंबर्स, कितने 6 डिजिट नंबर्स यहाँ पे आप फॉर्म कर सकते हैं। तो लेट अस सी, बिल्कुल यही रिजल्ट हमारा यहाँ पे यूज होगा, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो इसी रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें तो हाउ मैनी डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। नाउ देयर आर टोटल 6 डिजिट्स, राइट? तो देयर आर टोटल 6 डिजिट्स। तो n फैक्टोरियल के प्लेस पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल
ओके, बिकॉज देयर आर टोटल 6 डिजिट्स, राइट। 6 ही प्लेसेस हैं और 6 डिजिट्स की हेल्प से हमने इन 6 के 6 प्लेसेस को यहाँ पे फिल करना है। नाउ यहाँ पे जो 1 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल, एंड 3 आपके पास सिर्फ 1 टाइम है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना है तो 1 फैक्टोरियल ही आएगा, तो देयर इज नो नीड। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेरी सिंपल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 3 फैक्टोरियल कैंसल एंड इट विल कम 60। तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड विल बी 60। तो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे वो नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे टोटल 60, राइट स्टूडेंट्स। सो इट इज़ क्लियर, ओके। तो इट्स वेरी सिंपल। इसी में जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3 लाख। ठीक है, इन्हीं नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 लाख से ग्रेटर हैं, जो 3 लाख से बड़े हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम 3 लाख से बड़े नंबर्स की बात करें, अब यहाँ पे हमें 6 प्लेसेस फिल करने हैं, 6 डिजिट हमें यहाँ पे नंबर्स बनाने हैं। डेट इज वी हैव टू फिल यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ओके, 1000 प्लेस, देन 10,000 प्लेस, ओके, देन लाख प्लेस, ओके। सो 1 2 3 4 टोटल 6 प्लेसेस हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं। और जो नंबर्स हैं वो हमारे नंबर्स जो है ग्रेटर देन 3 लाख होने चाहिए। तो इट मीन्स वी कैन फिल लाख प्लेस विद हेल्प ऑफ 3 ओनली। सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है लाख प्लेस को फिल करने का, देयर ओनली वन वे, दैट इज आई कैन फिल ओनली 3 ओनली। तो लाख प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे एंड रिमेनिंग मेरे पास कितने प्लेसेस बचते हैं, 5 प्लेसेस बचते हैं। और मेरे पास डिजिट्स भी 5 हैं, जिसमें से 1 आपके पास 3 टाइम्स है, 2 आपके पास 2 टाइम्स है। तो टोटल प्लेसेस आपके पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट्स वेरी सिंपल। 1 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल एंड द टोटल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू 5 10। सो टोटल 6 डिजिट नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 3 लाख आपके पास आ गए 10। तो 3 लाख के केस में हमने क्या किया, लाख प्लेस को सिर्फ हम वन वे में फिल कर सकते हैं, वी कैन यूज ओनली 3, हम सिर्फ 3 यूज कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग 5 प्लेसेस हैं टोटल 5 हो गए और बाकी हमारे पास 5 डिजिट्स बचते हैं, जिसमें से 1 आपके पास 3 टाइम्स है इसलिए 3 फैक्टोरियल, 2 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर देंगे, आपके पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे 10, राइट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ लेट अस मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। सो लेट अस सी व्हाट इज अवर थर्ड क्वेश्चन। How many arrangements can be made with the letters of the word series? How many arrangements can be made with the letters of the word series? ठीक है, आपको series word के letters की help से आपको सारी जो possible जो arrangements हैं वो यहाँ पे आपको लिखनी है। और उसमें भी आपको आगे पूछा गया है कि how many of these begin and end with S? उसमें से भी ऐसी कितनी हैं जो एस से ही स्टार्ट होती हैं और एस पर ही एंड होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, दोनों को सेपरेटली अलग अलग करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि सीरीज, जो सीरीज वर्ड है उसकी लेटर्स की हेल्प से हम कितने पॉसिबल वर्ड्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर हम सीरीज की बात करें तो इसमें एस 2 टाइम्स आ रहा है आपके पास और ई भी आपके पास 2 टाइम्स है और बाकी आपके पास डिफरेंट है, डेट इज आर एंड आई। तो देयर आर टोटल 6 लेटर्स एंड विद हेल्प ऑफ दीज 6 लेटर्स हमें यहाँ पे जो है 6 लेटर्स का यूज़ करके हमें टोटल पॉसिबल वर्ड्स यहाँ पे बनाने हैं। तो सेम यहाँ पे जो n है वो आपके पास 6 है, दैट इज 6 फैक्टोरियल एंड 2 letters are of same kind, that is 2 factorial and also 2 letters are of same kind, 2 factorial। ये डिफरेंट है तो इसके लिए आपको 1 factorial लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व कर दीजिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 6 एंड इट विल बी 10 इंटू 30 दैट इज 180। तो आपके पास जो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड है वो आ जाएंगे 180 वर्ड्स, राइट स्टूडेंट्स। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हम इसी रिजल्ट का बार यूज कर रहे हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। नाउ इसी में सेकंड पार्ट क्या है, अब इन वर्ड्स में से आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन एंड एंड विद s। ऐसे कितने हैं जो s से ही शुरू होते हैं और s पर ही एंड होते हैं। तो लेट अस सी कैसे होगा ये। तो टोटल 6 आपके पास प्लेसेस हैं जो आपको फिल करने हैं। नाउ कंडीशन इज जो आपके जो वर्ड्स हैं वो एस से ही स्टार्ट होने चाहिए और एस पर भी एंड होने चाहिए। टोटल 6 प्लेसेस हैं, तो जो हमारा फर्स्ट प्लेस है उसको भी हम 1 वे में फिल कर सकते हैं, जो हमारा 6 प्लेस है उसको भी हम 1 वे में ही फिल कर सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग और जो एंडिंग जो लेटर है वो उस पर कंडीशन लग गई है कि वो एस ही होना चाहिए। बाकी आपके पास 4 प्लेसेस है,
आपके पास 4 प्लेसेस हैं और 4 लेटर्स से आपके पास अवेलेबल हैं। तो 4 लेटर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? ई, ई, आर और आई। एंड आउट ऑफ दीज 4 लेटर्स 2 लेटर्स हेयर 2 लेटर्स ई, दीज आर अलाइक ऑफ सेम काइंड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आर एंड आई तो डिफरेंट है, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1। ओके, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1। एंड सॉल्व करने के बाद इट विल बी 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास जो टोटल आपके पास यहाँ पे जो वर्ड्स आ जाएंगे जो कि आपके जो बिगिन एंड एंड विद एस, तो आपके पास टोटल वर्ड्स आ गए 12, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स these were 3 questions based on our result. Okay, now let us do some more questions. Okay, so our next question is, let us see what is our 4th question. Find the number of arrangements of letters of the word independence. Independence, ठीक है, वर्ड के लेटर्स को आपने अरेंज करना है सो डैट कंडीशंस हैं वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। फर्स्ट केस है कि वॉवल्स हमेशा इकट्ठे आने चाहिए, एंड द सेकंड केस वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस करते हैं, वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो इंडिपेंडेंस वर्ड में सबसे पहले देखिए वॉवल्स कौन कौन से आपके पास यहाँ पे वॉवल्स हैं। दैट इज आई, ई आपके पास 4 टाइम्स है, ठीक है, हमने इकट्ठा कर लिया। बाकी क्या बचा हमारे पास? एन, डी, पी, एन, डी, एन, सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड प्लस 5 टोटल 12 हमारे पास लेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो कंडीशन है कि वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वॉवल्स हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। तो स्टूडेंट जब वॉवल्स, जब हम कुछ चीज़ों को एक साथ इकट्ठा लेते हैं तो उसको हम एक सेट मान लेते हैं, उसको एज ए वन बंडल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो दिस होल एज ए 1 एंड दीज आर 3 + 3 6 7। तो टोटल आपके पास हो गए 1 + 7 8। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 लेटर्स को सबसे पहले अरेंज करेंगे, जिनको हमने एक साथ लेकर चलना है उसको हम एज ए 1 कंसिडर कर लेते हैं। प्लस 7, 7 + 1 टोटल 8 हो गए हैं आपके पास। तो दिस 8 कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, ये आप एज ए 1 लेके चल रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या कोई रिपीट हो रहे हैं? यस, एन आपके पास 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और डी आपके पास 2 टाइम्स है। तो एन 3 टाइम्स, डी 2 टाइम्स, राइट। एंड नाउ ये जो वॉवल्स एक साथ हम लेकर चल रहे हैं, ये अपने आप में कितने वेज में इनको अरेंज किया जा सकता है? दीज आर टोटल 5 फैक्टोरियल, और ये आपके पास 4 टाइम्स आ रहा है, दैट इज 4 फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स। तो कैसे करना है आपको? सबसे पहले जिनको आपने एक साथ लेकर चलना है उसको आप एज ए 1 लेकर चलेंगे, प्लस 7 टोटल आपके पास 8 हो गए। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन ये एज ए 1 ही लेके चलेंगे। इसमें देख लेंगे कि एन आपके पास 3 टाइम्स है, डी आपके पास 2 टाइम्स है। एंड देन ये जो वॉवल्स एक साथ अकर कर रहे हैं, ये भी अपने आप में अपनी जो पोजीशंस हैं उनको इंटरचेंज, पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज दीज 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे ई आपके पास 4 टाइम्स है, राइट, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज द टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड व्हेन वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2, इट विल बी 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3। सो इट विल बी 56 × 15 × 20, right? It will be 56 × 300, and after solving we will get 18. It will be 16,800. So 16,800 words हमारे पास ऐसे यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे in which vowels always occur together, right students? Now come to second part. In second part we have to find when vowels never come together. वो never occur together, वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो उस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। पहले हम इंडिपेंडेंस वर्ड के सभी लेटर्स को लेकर ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस अरेंजमेंट्स में से हम माइनस कर देते हैं वो अरेंजमेंट जब वॉवल्स अकर टुगेदर। तो आपके पास वो पॉसिबल वेज आ जाएंगे व्हेन वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, राइट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 16,800, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 16,800। नाउ वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। इंडिपेंडेंस वर्ड है हमारे पास, इंडिपेंडेंस,
तो इसमें टोटल हमारे पास 12 है, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी 12 फैक्टोरियल, ठीक है। n आपके पास आ रहा है 3 टाइम्स, e 4 टाइम्स एंड d 2 टाइम्स, ओके। और ये हमारे पास टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गए हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे वो अरेंजमेंट्स व्हेन वॉवल्स अकर टुगेदर। तो स्टूडेंट्स आप इसको बहुत इजीली यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा व्हेन वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, व्हेन वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सबसे पहले आपने वो अरेंजमेंट फाइंड आउट कर ली व्हेन वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, राइट। और उस अरेंजमेंट को आपने माइनस कर दिया टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से, ठीक है। सो आपके पास वो अरेंजमेंट आ जाएगी व्हेन वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, राइट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। हरियाणा वर्ड के लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं सो दैट H एंड N आर ऑलवेज टुगेदर, कि H और N हमेशा एक साथ इकट्ठे आने चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है जैसे भी हमने क्वेश्चन में 4 किया है, सेम यहाँ पे मेथड फॉलो होगा। सो H एंड N शुड कम टुगेदर। तो सबसे पहले जो एक साथ आएंगे उनको हम एज ए वन सेट यहाँ पर लेकर चलेंगे, H एंड N, ठीक है। इसको हम एज ए वन ले लेंगे, ओके। और बाकी जो हमारे पास बचते हैं डेट इज ARYAA, टोटल 5 वर्ड हमारे पास बचते हैं। तो 5, तो 1 + 5 ये टोटल हो गए आपके पास 6, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम एज ए वन ही लेके चल रहे हैं। बाकी 5 में से देखिए रिपीटिशन है, यस। ए आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। एंड दीज H एंड N जो कि एक साथ इकट्ठे आने चाहिए, ये अपने आप में कितने बेस में अरेंज किए जा सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बेस। तो 2 फैक्टोरियल बेस सॉल्व कर लेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2, ये कैंसल, इट विल बी 30 × 4 120 × 2 240। आपके पास जो टोटल वर्ड्स फॉर्म होंगे वो 240 आ जाएंगे, इन विच H एंड N आर ऑलवेज टुगेदर, राइट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ let us move to our next 6th question. How many different words can be formed with the letters of the word algebra? algebra word के letters की help से कितने words बनाए जा सकते हैं so that 2 A's are together? कंडीशन आ गई 2 A's पर, ये दोनों जो A हैं ये इकट्ठे आने चाहिए। तो इनको हम एक साथ लेकर चलते हैं सबसे पहले एज ए वन, और बाकी क्या बचेगा LGEBR, टोटल 5 बचते हैं आपके पास। तो 1 + 5 ये टोटल 6 हो गए आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, यस, 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्या कोई रिपीट कर रहा है, नो रिपीटिशन, ऑल आर डिफरेंट, ओके। एंड नाउ दीज 2 A's, ठीक है, ये दोनों जो एक साथ है इनको कितने बेस में अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, और ए आपके पास 2 टाइम्स ही आ रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, एंड 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। So it's very simple, right students? So students, today we have done a number of questions based on our topic, that is permutations of objects, not all different. So students, type questions, and in the next lecture we will meet with our next topic. Thank you.